The communication reads as follows. President, Republic of India, August 26, 2021, 4th Bhadrapada, 1943 Shaka. Order. In pursuance of the provision contained in Clause 6 of Article 124 of the Constitution of India, I, Ramnath Kovind, President of India, do hereby appoint the Chief Justice of India as the person before whom Shri Justice A.S. Oak, Shri Justice Vikram Nath, Shri Justice J.K. Maheshwari, Ms. Justice Hima Kohli, Srimati Justice B.V. Nagaratna, Shri Justice C.T. Ravi Kumar, Shri Justice M.M. Sundaresh, Ms. Justice Bela M. Trivedi, and Shri P.S. Narasimha shall, before they enter upon their respective office as judges of the Supreme Court of India, make and subscribe an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the third schedule of the Constitution of India. Signed, President of India. Warrant of appointment of Honorable Shri Justice Abhay Srinivas Oak reads as under. By virtue of the power vested in me by Clause 2 of Article 124 of the Constitution of India, I, Ramnath Kovind, President of India, do hereby appoint Shri Justice Abhay Srinivas Oak, Chief Justice of the Karnataka High Court, to be a judge of the Supreme Court of India with effect from the date he assumes charge of his office. Given at Rashtrapati Bhavan, New Delhi, this 26th day of August in the year 2021, 4th Bhadrapada, 1943 Shaka, in the 72nd year of the Republic of India. Signed, President of India. May I now request Honorable Shri Justice Abhay Srinivas Oak to take oath. I, Abhay Srinivas Oak, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, do solemnly affirm do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. Give. Warrant of appointment of Honorable Shri Justice Vikram Nath reads as under. By virtue of the power vested in me by Clause 2 of Article 124 of the Constitution of India, I, Ramnath Kovind, President of India, do hereby appoint Shri Justice Vikram Nath, Chief Justice of the Gujarat High Court, to be a judge of the Supreme Court of India with effect from the date he assumes charge of his office. Given at Rashtrapati Bhavan, New Delhi, this 26th day of August in the year 2021, 4th Bhadrapada, 1943 Shaka, in the 72nd year of the Republic of India. Signed, President of India.
May I now request Honorable Chief Justice Vikram Nath to take oath. I, Vikram Nath, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully, to the best of my ability, knowledge and judgment, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. Warrant of appointment of Honorable Chief Justice Jitendra Kumar Maheshwari reads as under. By virtue of the power vested in me by Clause 2 of Article 124 of the Constitution of India, I, Ramnath Kovind, President of India, do hereby appoint Chief Justice Jitendra Kumar Maheshwari, Chief Justice of the Sikkim High Court, to be a judge of the Supreme Court of India with effect from the date he assumes charge of his office. Given at Rashtrapati Bhavan, New Delhi, this 26th day of August in the year 2021, 4th Bhadrapada, 1943 Shaka, in the 72nd year of the Republic of India. Signed, President of India. May I now request Honorable Chief Justice Jitendra Kumar Maheshwari to take oath. I, Jitendra Kumar Maheshwari, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully, to the best of my ability and knowledge and judgment, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. Warrant of appointment of Honorable Ms. Justice Hema Kohli reads as under. By virtue of the power vested in me by Clause 2 of Article 124 of the Constitution of India, I, Ramnath Kovind, President of India, do hereby appoint Kumari Justice Hema Kohli, Chief Justice of the High Court for the State of Telangana, to be a judge of the Supreme Court of India with effect from the date she assumes charge of her office. Given at Rashtrapati Bhavan, New Delhi,
this 22nd day of August in the year 2021, 4th Bhadrapada 1943 Shaka, in the 72nd year of the Republic of India. Signed, President of India. May I now request Honorable Ms. Justice Hema Kohli to take oath. I, Hema Kohli, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully, to the best of my ability, knowledge and judgment, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. Warrant of appointment of Honorable Srimati Justice Bangalore Venkatramaiah Nagaratna reads as under. By virtue of the power vested in me by Clause 2 of Article 124 of the Constitution of India, I, Ramnath Kovind, President of India, do hereby appoint Srimati Justice Bangalore Venkatramaiah Nagaratna, Judge of the Karnataka High Court, to be a judge of the Supreme Court of India, with effect from the date she assumes charge of her office, given at Rashtrapati Bhavan, New Delhi, this 26th day of August in the year 2021, 4th Bhadrapada 1943 Shaka, in the 72nd year of the Republic of India. Signed, President of India. May I now request Honorable Srimati Justice Bangalore Venkatramaiah Nagaratna to take oath. I, Bangalore Venkatramaiah Nagaratna, Having been appointed a judge of the Supreme Court of India, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws.
Congratulations. God bless you. Thank you. Warrant of appointment of Honorable Shri Justice Chudalail Tevan Ravi Kumar reads as under. By virtue of the power vested in me by Clause 2 of Article 124 of the Constitution of India, I, Ramnath Kovind, President of India, do hereby appoint Shri Justice Chudalail Tevan Ravi Kumar, Judge of the Kerala High Court, to be a Judge of the Supreme Court of India, with effect from the date he assumes charge of his office. Given at Rashtrapati Bhavan, New Delhi, this 26th day of August in the year 2021, 4th Bhadrapada 1943 Shaka, in the 72nd year of the Republic of India. Signed, President of India. May I now request Honorable Shri Justice Chudalail Tevan Ravi Kumar to take oath. तो यहाँ पर आप लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो 9 नए जज उनकी नियुक्ति का कार्यक्रम चल रहा है, शपथ ग्रहण चल रहा है, उसकी सीधी तस्वीरें लाइव टेलीकास्ट इस वक्त देख रहे हैं। और ऐसा पहली बार है कि शपथ ग्रहण का जो है लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। ये ऑडिटोरियम में चल रहा है, कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन करते हुए। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। अश्विनी दुबे वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, अमित शर्मा सुप्रीम कोर्ट के वकील, और साथ ही सीमा समृद्धि कुशवाहा, वो भी सुप्रीम कोर्ट की वकील, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सीमा, मैं आपके पास पहले आना चाहूंगी। ये अपने आप में एक बेहद ऐतिहासिक क्षण कहा जाएगा जब पहली बार 9 जज एक साथ शपथ यहां पर ले रहे हैं। और थोड़ा आप बताएं यहाँ पे नियुक्ति की प्रक्रिया क्या रहती है, कैसे होती है, और साथ ही 2 साल में कॉलेजियम में सहमति न बन पाने के कारण बताया जाता है कि अभी तक नियुक्ति नहीं हुई थी। 2 साल बाद ये नियुक्ति हो रही है, नई नियुक्ति हो रही है। थोड़ा समझाएं इस पूरी प्रक्रिया को। देखिए मैम, सबसे पहले तो आज एक खुशी की बात यह है कि 9 जो जजेस हैं एक साथ उनका अपॉइंटमेंट हुआ है। लेकिन उससे भी ज्यादा खुशी की बात यह है कि पहली बार एक साथ 3 महिला जजेस जो हैं वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपॉइंट की जा रही हैं, जिसकी फाइट जो है फीमेल हमेशा करती रही है। तो ये भी एक बहुत अच्छा मैसेज है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो 33% रिजर्वेशन की हम बात करते हैं, लेकिन रिजर्वेशन नहीं, वो रिप्रेजेंटेशन महिलाओं का होगा, क्योंकि जो महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम होते हैं उसमें कहीं ना कहीं ये पूरा जो एक सिस्टम है उसमें फीमेल को ये हमेशा लगता है कि अगर महिला जजेस हो तो शायद हमारे फेवर में नहीं, बट वो कॉन्फिडेंट रहेंगी। तो एक तो ये बहुत अच्छी बात है मैम। और साथ ही एक और चीज कि हमेशा ये भी आवाज उठती रही है विरोध के रूप में कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय हो या हाई कोर्ट हो, वहां पर जो है कि वो फैमिली के जो भी जजेस हैं उनके फैमिली मेंबर्स जी या पर्टिकुलर कुछ लोगों को। लेकिन इस बार ऐसा है कि एक एससी जज जो है उनको भी अपॉइंट किया गया है, एक ओबीसी जज को भी अपॉइंट किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जब रिजर्वेशन की बात होती है, रिप्रेजेंटेशन की, तो हर वर्ग चाहे वो महिला हो, चाहे वो एससी समुदाय हो, चाहे वो ओबीसी हो, अपना रिप्रेजेंटेशन देखना चाहता है। तो ये एक अच्छा मैसेज है। साथ में ही मैम की जो कॉलेजियम सिस्टम है, उससे पहले मैं एक बात करना चाहूंगी कि यूपीए गवर्नमेंट में जो एक एक्ट पास करके और गठन किया गया था, जिसको एनजेसी बोलते हैं, जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ही इंटरप्रिटेशन करके उसको बता दिया था कि ये जुडिशरी में इंटरफेयर है, और जुडिशरी और हमारे जो कार्यपालिका है, न्यायपालिका से इसका पृथक्करण है, इसलिए इनका इंटरफेयर मान के उसको मतलब सही नहीं बताया था कि इंटरफेयर है। लेकिन कॉलेजियम सिस्टम में आखिर एक ये बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर क्या कारण था, जब सब कुछ फेयर है, सब कुछ ठीक है, तो फिर 2-2 साल लग जाते हैं, और इधर केसेस की पेंडेंसी है जो वो निरंतर बढ़ती जाती है। जी, यहाँ पर बात करें जी 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 आप अपनी बात थोड़ा संक्षेप में पूरी कर लें, फिर हम अगले गेस्ट की तरफ भी जाएंगे। जी, तो मैम इसमें एक जो कॉलेजियम सिस्टम है, इसको जब ये एग्जिस्टेंस में आया, क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कहीं प्रावधान नहीं है,
जब ये एग्जिस्टेंस में आया है तो उसके बाद से जो भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं वो कॉलेजियम सिस्टम जो है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनके रिकमेंडेशंस पे और साथ ही साथ 2 अदर जजेस के रिकमेंडेशन से जो नाम है वो रिकमेंड किए जाते हैं, उनको आगे किया जाता है फर्दर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए कि वो इनको अपॉइंट करेंगे। जी सीमा जी, हमारे साथ अमित जी भी हैं, उनका भी एक बार रुख कर लेते हैं, अभी तक उनसे इस संबंध में बात नहीं हो पाई है। अमित जी, यहाँ पर अब क्या माना जाए कि 34 में से 33 पद एक तरीके से पूरे भर ले जाएगी, एक भी अभी पेंडिंग वैकेंसी अभी भी वहां पर बनी हुई है। यहां पर 9 जजों का एक साथ शपथ ग्रहण हो रहा है, अपने आप में ऐतिहासिक बताया जा रहा है, और क्योंकि इसमें सभी राज्यों का, एक तरीके से ज्यादातर राज्यों का, अलग अलग स्टेट्स का, डिफरेंट स्टेट्स का यहां पर एक कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। ये अपने आप में ऐतिहासिक बात है। जी, सबसे पहले नमस्कार। और बिल्कुल ये बिल्कुल ही ऐतिहासिक घड़ी है हमारे लिए, हमारे पूरे देश के लिए, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है। 9 न्यायाधीश माननीय उच्चतम न्यायालय में शपथ ले रहे हैं, पहली बार एक प्लेटफॉर्म पे लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। और उससे भी बड़ी बात है कि 3 महिला जजेस भी अपॉइंट हुए हैं, और उसमें से एक जस्टिस नवरत्ना जी जो हैं वो आगे चल के भारत की 55वीं मुख्य न्यायाधीश बनेगी उच्चतम न्यायालय की, जो कि पहली बार होगा भारत के इतिहास में। बिल्कुल। तो इन दृष्टियों से भी हमारे लिए ये ऐतिहासिक दिन है। दूसरा, जैसे जस्टिस PS नरसिम्हा हैं, ही विल बी द 3rd चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के, जो डायरेक्ट अपॉइंटी है बार के, और वो मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। इसके पहले जस्टिस रे रह चुके हैं, और अब हमारे जो अभी वर्तमान में जस्टिस वीवी ललित हैं, वो भी मुख्य न्यायाधीश होके कब रिटायर होंगे। तो इन दृष्टियों से मुझे लगता है कि मतलब भारत के सुप्रीम कोर्ट के 71वें साल में ये ऐतिहासिक दिन है हमारे लिए। बिल्कुल। और जहां तक राज्यों के रिप्रेजेंटेशन का सवाल है, तो वो तो हमेशा ही सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस पर ध्यान दिया है, और विभिन्न राज्यों से, हर राज्यों से रिप्रेजेंटेशन रहा है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से रहा है। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे कह सकता हूं, क्योंकि चूंकि मैं बाहर भी जाता हूं बहस करने के लिए, तो मैं व्यक्तिगत तौर पे 2-3 न्यायाधीशों जो अभी न्यायाधीश की शपथ ले रहे हैं, उनके समक्ष मैंने अपने केसेस रिप्रेजेंट किए हैं, और मैं कह सकता हूं कि ये बहुत ही जबरदस्त बेंच बनेगा। और मेरे ख्याल में चूंकि स्ट्रेंथ भी अब पूरा हो गया है, इसलिए जो पेंडेंसी है वो भी शायद कम होगी। जी, और यहाँ पर अश्विनी जी, आपसे भी ये समझना चाह रहे हैं कि यहाँ पर धीरे धीरे हम देख रहे हैं जिस तरीके से लाइव टेलीकास्ट हुआ, एक कहीं ना कहीं खुलापन, आम लोग जो है किस तरह से सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही चलती है वो समझ पाने में अब शायद थोड़ा और खुलापन आएगा, ट्रांसपेरेंसी की जो बात हो रही है। साथ ही आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि अब जबकि 9 में से 3 महिला जज, आज उन्होंने भी शपथ लिया है, अब कुल सुप्रीम कोर्ट पे 4 महिला जज हो जाएंगी। महिलाओं की भागीदारी को आप किस तरह से देख रहे हैं? एक बेहद बड़ी बात है सर्वोच्च न्यायालय में उनकी भागीदारी। जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो बड़ा ही हिस्टोरिकल और ऐतिहासिक ये मोमेंट है, जिसमें मैक्सिमम माने 4 जजेस अभी महिला जजेस हैं, जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री से हैं, दिल्ली से हैं, और कर्नाटका से हैं, और गुजरात से हैं, और आपके वेस्ट बंगाल से हैं, जस्टिस इंदिरा बैनर्जी। अब सवाल यहां पर तो सबसे बड़ी चीजें आती है कि जो पेंडेंसी की, एक तो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर और दूसरा डिस्पोजल। अगर अभी हम देखें जया, ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ, लाइव स्ट्रीमिंग के साथ साथ, जनता की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के साथ उसके केस में क्या आर्ग्यूमेंट होता है, के साथ सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा वो चैलेंज होगा केसेस के डिस्पोजल का। अभी पूरे देश में 3.9 करोड़ केसेस पेंडिंग है, जिसमें से 58 लाख केसेस जो है बहुत सारे हाईकोर्ट से हैं, और 69,000 केसेस अकेले सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो वो पेंडेंसी कोविड-19 की वजह से बड़ी सारी पेंडेंसी, और 19% पिछले साल मार्च से लेकर अब तक जो पेंडेंसी बढ़ी है केसेस की कोविड की वजह से, वो उसको इफेक्टिवली और जुडिशियसली उसको डिस्पोजल करने का सबसे बड़ा जो वो होगा, वो इन जजेस के ऊपर होगा। और वो किस तरह से सबऑर्डिनेट कोर्ट को डायरेक्शन देते हैं, क्या रूपरेखा बनाते हैं, क्या पैरामीटर्स फिक्स करते हैं, वो एक बड़ा विषय होगा। और मैं समझता हूं कि अभी सुप्रीम कोर्ट में देश के तमाम हाई कोर्ट से डिफरेंट लीगल फील्ड के डिफरेंट
स्टेट्स के जो लोग हैं अपने अपने एक्सपर्टीज के साथ, चाहे जस्टिस एएस ओका हो, चाहे जस्टिस विक्रमनाथ गुजरात से हो, हालांकि उनका पेरेंट हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश है, जस्टिस माहेश्वरी मध्य प्रदेश के हैं पेरेंट हाई कोर्ट, जस्टिस नुमा कोहली दिल्ली है, उनका पेरेंट हाई कोर्ट, बीवी नागरत्ना है कर्नाटका से, सीटी रवि कुमार साहब केरला से हैं, जस्टिस एन सुंदरेश, और गुजरात से जस्टिस बेला त्रिवेदी। तो हम देखें तो देश में हर जगह से इफेक्टिवली एक रिप्रेजेंटेशन है, तो ये भी समझने में आसानी होगी कि किस स्टेट में क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को कैसे मीट आउट करना है। और मैं समझता हूं कि अभी कोरम पूरा हो जाने से, 34 जजेस के हो जाने से, सुप्रीम कोर्ट में 33 जजेस के हो जाने से सुप्रीम कोर्ट की भी पेंडेंसी खत्म होगी, और साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और ट्रायल कोर्ट्स को बीइंग द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होने का, अपेक्स कोर्ट होने के नाते डायरेक्शन देगा, वो उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करें। तो मैं समझता हूं इट इज वन ऑफ द बेस्ट हिस्टोरिकल, और बहुत सारे जो चाहे बार का रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे जुडिशरी का रिप्रेजेंटेशन हो, और चाहे डिफरेंट हाई कोर्ट्स का और विमेन का रिप्रेजेंटेशन हो, वो सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिलता है, और ये बड़ा हिस्टोरिकल है। जया, बिल्कुल, ये अपने आप में बेहद ऐतिहासिक है। एक साथ 9 जजों का शपथ यहां पर चल रहा है, और साथ ही लाइव टेलीकास्ट भी चल रहा है। आम जनता भी समझ पा रही है कि इस वक्त चल क्या रहा है, और ये पहली बार हो रहा है जब सुप्रीम कोर्ट के जज जब नियुक्त होते हैं, उनका शपथ ग्रहण होता है, उसका लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। यहां पर अमित जी आपसे, और बाद में आपके पास भी आऊंगी सीमा जी। अमित जी, यहां ये भी बताएं आप कि हम एक आम इंसान, एक दर्शक समझना चाहे, कानून की नजर में सब बराबर होते हैं। अब जबकि 9 जो जज आए हैं उनमें से 3 महिला हैं, और अब कुल 4 महिला जज हो जाएंगी सुप्रीम कोर्ट में। बहुत से ऐसे केसेस आते हैं, ऐसे में जब महिला जज होती हैं तो फैसले लेने में क्या कुछ फर्क, संवेदनशीलता कुछ अलग नजर आता है? देखिए, मेरा तो व्यक्तिगत अनुभव ये रहा है कि एक बार जब आप एज अ जज, न्यायाधीश ओथ ले लेते हैं, उसके बाद आप सिर्फ कानून को देखते हैं, और बिल्कुल कानून के नजर में सब बराबर है। आर्टिकल 14 है हमारा संविधान का, जो हमें सबको इक्वल राइट्स देता है। तो मुझे लगता है कि चाहे वो महिला जज हो या पुरुष जज हो, उनका नजरिया एक जैसा रहता है। और जहां तक आपके प्रश्न का सवाल है, मुझे लगता है थोड़ा नजरिया, थोड़ा टिल्ट जरूर रहेगा महिला की तरफ, और रहना भी चाहिए मेरे हिसाब से। सीमा जी, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगी? देखिए मैम, बिल्कुल नो डाउट कि जब भी कोई किसी पोजीशन पे होता है तो वो न्यूट्रल होकर के ही अपना वर्क करता है, लेकिन फैक्ट और एविडेंसेस जो भी हैं उनसे भी इतर कुछ सोसाइटी में रिफॉर्म की बात भी हमारी जुडिशरी से आती है। टाइम टू टाइम ऐसे इंटरप्रिटेशन लॉ के किए जाते हैं जो कि उस सेक्शन के, उस धारा के पीछे का जो हिस्ट्री है, उसका जो इंटेंशन है, उसका इंटरप्रिटेशन जजेस करते हैं। और जब मैरिटल रेप जैसे केसेस पर डिस्कशन होता है, तो कहीं ना कहीं फीमेल को ये महसूस होता है कि आखिर क्यों इन सारी चीजों को, जब हम इंडिविजुअली एक पर्सन की, उसकी फ्रीडम, उसकी लिबर्टी, उसकी डिग्निटी की बात कर रहे हैं, तो ऐसे क्राइम को क्यों पारिवारिक संस्था स्ट्रक्चर के नाम पे जस्टिफाई कर दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि जब फीमेल आएंगी, उनका भी रिप्रेजेंटेशन होगा, तो उनके परसेप्शन से भी जब इंटरप्रिटेशन उनका होगा, तो और भी ज्यादा रिफॉर्म होंगे, और भी ज्यादा उनके जो इंटरप्रिटेशन होंगे, उनके अकॉर्डिंग लेजिस्लेचर हमारी है वो कानून को बनाएगी। और जो हमारे देश की 49% पॉपुलेशन है महिलाओं की, वो ये महसूस नहीं करेगी कि शायद यहाँ पर अगर जस्टिस जो है वो महिला होती तो इंटरप्रिटेशन दूसरा होता, क्योंकि ये महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और नो डाउट, जैसे कि अभी अमित सर ने कहा, बिल्कुल कि जजेस न्यूट्रल होते हैं, लेकिन जो इंटरप्रिटेशन है वो इंडिविजुअल होती है, वो न्यूट्रल नहीं होती है। उस सेक्शन में हमारे अपने ओपिनियन होते हैं, जो कि अधिकार इंटरप्रिटेशन करने का माननीय सर्वोच्च न्यायालय और हमारे हाई कोर्ट को मिला हुआ है। तो इससे नो डाउट कि आज मुझे भी बहुत खुशी हो रही है इस बात की, और आई थिंक एक वाकई में बहुत ऐतिहासिक दिन है। तो इस तरीके के जैसे मैरिटल रेप के केसेस हो गए या डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में जो इंटरप्रिटेशन आती है, उसमें कभी कभी मुझे लगता है कि जब लेडीज फीमेल आती हैं, वो कहती है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो जजमेंट है मैम, वो तो हमारी जो सिचुएशन है, जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, उसके अकॉर्डिंग तो इंटरप्रिटेशन नहीं आया है, तो फिर हमें कैसे जस्टिस मिलेगा। तो इन सारी चीजों पे मैम मुझे लगता है एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर हुई है। महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन सुप्रीम कोर्ट में, देश की सर्वोच्च अदालत में बढ़ा है। यहाँ पर अश्विनी जी, यहाँ एक चीज और आप यहाँ पर हमको समझाएं, क्योंकि ये भी अपने आप में ऐतिहासिक होने जा रहा है कि देश की पहली
महिला जो है मुख्य न्यायाधीश बनने जा रही है 2027 में। हालांकि जस्टिस बीवी नागरत्ना का नाम, और ये भी अपने आप में ऐतिहासिक है कि उनके पिता वो भी मुख्य न्यायाधीश रहे थे और वो भी अपने पिता के पद चिन्हों पर चल के मुख्य न्यायाधीश होने जा रही हैं। कई आज ऐतिहासिक क्षण देखने को मिल रहे हैं सबके सामने, एक आम दर्शक इस बात को समझ पाएगा। जी निश्चित तौर पर हमारे सुप्रीम कोर्ट के लिए और सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन के लिए और एक महिला चीफ जस्टिस जो मिलने जा रही है, वो निश्चित तौर पर महिलाओं की अकाउंटेबिलिटी जुडिशियरी में भी इंश्योर करेगी। और ऐसा नहीं है, हमारे देश में पार्लियामेंट से लेकर लेजिस्लेटिव असेंबली से लेकर तमाम निकायों तक, पंचायतों तक महिलाओं को तमाम अधिकार मिले हुए हैं, तमाम रिजर्वेशन भी है। आप उत्तर प्रदेश में भी देखिए, 272 में से मैं समझता हूं कि 171 या 170 के आसपास महिलाएं जो है सरपंच बनी। तो मध्य प्रदेश में भी कमोबेश ऐसी स्थिति है। तो ऐसा नहीं है कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन जो तमाम निकाय हैं, तमाम संस्थाएं हैं, वहां नहीं है। और रिजर्वेशन भी, पार्लियामेंट में भी रिजर्वेशन का इशू पेंडिंग है कि जो सीटों का बंटवारा होगा उसके हिसाब से वो किस तरह से, किस रेशियो पर दिया जाएगा। अब सवाल सबसे बड़ा ये आता है कि चाहे महिला जज हो चाहे पुरुष जज, उसकी अकाउंटेबिलिटी और उसकी एलिजियंस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और लॉज के लिए और आम जनमानस को कितना जस्टिस सिस्टम, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम हम इंश्योर कर आखिरी तौर पर न्याय मिले, वो उससे जो है सबसे बड़ा अनबायस्ड जुडिशियस मैनर, फेयर मैनर में आप देखिए एग्जाम्पल कोविड के समय कि किस तरीके से ऑक्सीजन का बंटवारा होगा इस स्टेट में। अश्विनी जी, आपके ऑडियो को हम थोड़ा ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आ जा रहा है। यहाँ अमित जी से तब तक ये समझ लेते हैं। अमित जी, यहाँ पर जिन सुधारों की बात यहाँ अश्विनी जी कर रहे हैं, क्या लगता है आने वाले वक्त में जुडिशरी में जो सुधार की जरूरत है, रिफॉर्म्स की जरूरत है, वो देखने को मिलेंगे? देखिए सर, जहां तक ये सुधार की बात है, मैं तो हम लोग सब कोरोना से अभी भी लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। लेकिन मैं तो माननीय उच्चतम न्यायालय को बहुत ही सराहना के दृष्टि से देखूंगा कि उन्होंने इस कठिन परिस्थिति में भी वर्चुअल कोर्ट करके बहुत सारे केसों का निपटारा किया है। हालांकि चूंकि हमारे यहाँ केसेस की संख्या बहुत ज्यादा है तो पेंडेंसी रह जाती है, बट मैं तो इसको मानूंगा। और हम रोज अपीयर करते हैं वर्चुअल कोर्ट से, अभी तो प्लेटफॉर्म भी चेंज होने की बात हो रही है, हुई भी है थोड़ी हद तक। और मुझे लगता है कि जहां तक सुधारों का सवाल है, तो मुझे लगता है सबसे निचले स्तर से सुधार की जरूरत होगी इसमें, जो कि शुरू होता है जिला कोर्ट से, जो कि राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। उसके लिए हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय में कुछ याचिकाएं भी पेंडिंग हैं जिस पे सुनवाई हो रही है। बिल्कुल, तो यहाँ पर जो एक कोरम था वो पूरा हो गया, जो नियुक्तियां रिक्त पड़ी हुई थी पिछले 2 सालों से, उसकी भी अब पूर्ति हो गई है। उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा और जल्द से जल्द जो केसों का निपटारा है वो आम जनता का भी होगा। और सुप्रीम कोर्ट में आज एक ऐतिहासिक दिन, सर्वोच्च न्यायालय में जो है 9 जजों ने एक साथ शपथ ग्रहण किया है, जिसका लाइव टेलीकास्ट पहली बार हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार जी।